Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 7th class. This is your first class of history and geography, and today we will start from the geography. I will first of all I will tell you the syllabi of first term that is also that was given to you in your summer vacation as well. These two chapters are included for the first term, that is earthquakes, and the unit number 1 earthquakes and unit number 2 volcanoes. Fine. So today we will start our lesson number 1, that is from the earthquakes. Do you know what is earthquake? Yes, earthquakes are ज़लज़ले, जिसे आप उर्दू में कहते हैं ज़लज़ला या ज़लज़ले. ठीक है. Earthquake is basically, when we define the earthquake, you can say this is a motion of the ground surface of the earth. ठीक है. And it may be ranges from the faint tremor to the wild motions. ठीक है. और earthquake may causes shaking of the building. It may open different cracks in the earth surface. ठीक है. And so that is called the motion of the ground surface of the earth is called the earthquake. And in the same way, when we talk about the earthquake, the whole world is distributed into three belts. Fine. The first one is the circum-Pacific belt, that is about 40,000 kilometer long. Fine. And that is surrounding that surround the region area, that is the Pacific Ocean, and about 90% of the world's earthquake that occur in this Pacific belt of the world. And the second belt is the Alpine or the Himalayan belt, that also include the areas like Atlas Mountains, Alps Mountains, and then is called Alborz, Hindu Kush, Karakoram, and Himalayan regions. All these include in the Alpine Himalayan belt. And about 17% of the world's earthquake occur in this belt. Then the third belt that is distributed, that is called the Hawaii, and that is in the Pacific Ocean. Very few earthquakes just are associated with this plate. ठीक है. Then next important topic is about the causes of the earthquake. अब earthquake के क्या reasons हो सकते हैं? There are the different so many reasons, but some of them are discussed here in your book, so we will discuss it according to that. Like the most important, this is seismic waves होती हैं. That is, seismic waves are basically, they are the energy waves. They are the number of the waves, number of the processes which produces these seismic waves. ठीक है. Like you know this thing that there are different layers of the earth है. ठीक है. If you remember your previous class, ठीक है, if you remember the lesson from your previous book of class 6, internal structure of the earth, you know the uppermost layer of the earth, that is called the crust. ठीक है. Different layers of the earth है ना. If you recall all those layers, they are crust, mantle, liquid outer core, solid inner core. ठीक है. तो जो crust है, that is basically the uppermost layer of the earth, and that layer is when the crust of the earth, that is divided into different segments. ठीक है. And these segments are called the plates. ठीक है. And that is tectonic plates, and that theory is given, this theory is also called the tectonic plates theory. ठीक है. इसके मुताबिक the whole world is divided into 7 plates. ठीक है, जिनको हम tectonic plates कहते हैं. ठीक है. और इन plates में अब you know this thing, they are continuously moving. इनकी movements हो रही होती हैं. That movement can be in a form of convergent, in a divergent, or in a transform type of movements. ठीक है. हॉरिजेंटली मूवमेंट्स हो रही होती हैं, वट एवर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ मूवमेंट्स हैं. फाइन. तो ये मूवमेंट्स की वजह से जहाँ पे प्रेशर बिल्ड होता है, उस प्रेशर को वहाँ से रिलीज़ होना होता है. तो वहाँ पे जो सिस्मिक वेव्स होती हैं, वहाँ पे उनका प्रेशर जब ज़्यादा होता है तो वहाँ से वो एकदम से वहाँ से इरप्ट करती हैं. एंड ऑन द पार्ट ऑफ द अर्थ, दैट वेव्स काजेज द earthquake on the surface of the earth. In the same way, another important cause of the earthquake is because of the
that is caused by the large water reservoirs. ठीक है, if there is a fault under the reservoirs, ठीक है, water from the reservoirs can lubricate, और ये जो lubrication होती है it build the immense pressure of the water, ठीक है, in the reservoirs that causes the seismic waves to seismic waves, ठीक है, that causes the basically earthquake. इसी तरीके से और इम्पॉर्टेंट जो सी काजेज़ हो सकती हैं earthquake की, डेट मे बी बिकॉज ऑफ इरप्शन ऑफ एनी वॉल्केनिक इरप्शन हो सकता है, इट कैन बी एनी अंडरग्राउंड मूवमेंट्स ऑफ द मैग्मा और लावा, यू कैन से लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट्स हो सकता है, दैट काजेज़ द earthquake. The point within the earth where seismic waves first originate is called basically that is called the focus point. जहाँ फर्स्ट टाइम आपको ये वाली एनर्जी वेव फील होती हैं, ठीक है, that causes the motion of the earth, that causes the earthquake, that point is called the focus point. ठीक है, और बिल्कुल इसी फोकस पॉइंट के ऊपर वाला जो अर्थ का डायरेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ जो होती है ऊपर डायरेक्टली अबव दिस फोकस पॉइंट, दैट इज़ कॉल्ड द एपिसेंटर. ठीक है, और यहाँ पे ये दैट इज़ बेसिकली द प्लेस वेयर द मोस्ट डैमेज अकर. ठीक है, सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिस्टमिक वेव्स, तो सिस्टमिक वेव्स आर ऑफ 3 टाइप्स. कौन कौन सी हैं? प्राइमरी वेव्स होती हैं, सेकेंडरी वेव्स होती हैं, एंड दे आर सरफेस वेव्स. प्राइमरी वेव्स कौन सी हैं? दे आर द फर्स्ट वेव जो कि रिकॉर्डिंग स्टेशन पे पहुंचती है, एंड दैट मूव एट द स्पीड ऑफ 4 to 7 किलोमीटर पर सेकेंड. दे एंड दे काज अ लिटिल डिस्टॉर्शन, ठीक है, इन द रॉक दे पास थ्रू. जिस रॉक में से वो गुजर रही होती हैं वहाँ बहुत हल्की फुल्की जो है वो डिस्टॉर्शन काज करती हैं. सेकेंड टाइप्स ऑफ वेव्स, सिस्मिक वेव इज़ secondary waves called the secondary waves, ठीक है, that move at the speed of 2 to 5 kilometer per second. They distort the rocks in a more complicated way, ठीक है. and the third one is surface waves कहते हैं इनको, that is the slowest waves होती हैं. they move in the most complex way, but they move in a most complex way, जो आस्ता आस्ता मूव करती हैं but moves in a most complex way, ठीक है, and they cause the greatest damage, और इसकी वजह से जो है वो अर्थक्वेक का जो है वो ज़्यादा डैमेज काज करता है. अब ये चीज़ की जी इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, हाउ कैन वी मेजर दिस थिंग, ठीक है. इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज बेसिकली मीन्स इट टेल्स अस अबाउट द डैमेज दैट इज़ काज्ड बाय द अर्थक्वेक. इंटेंसिटी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, इंटेंसिटी जो है इसके लिए जो स्केल यूज़ किया जाता है दैट वाज द मॉर्कले स्केल, और इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए, और दैट वाज बेसिकली इन अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है, ठीक है, प्योरली डिस्क्रिप्टिव होता है, और डेट कैन बी रिकॉर्डेड कैनॉट बी रिकॉर्डेड बाय अ मशीन. इसे कोई मशीन रिकॉर्डिंग करती है, बल्कि ये इस जो जिस जगह पे अर्थक्वेक फील किया जाता है उस जगह को इंस्पेक्ट किया जाता है, डैमेज को इंस्पेक्ट किया जाता है, और जो रिजर्वेयर्स होते हैं आस्किंग टू फिल द क्वेश्चनर इज़ गिवन टू देम एंड देन दे आर आस्क्ड टू फिल इट आउट. ठीक है, अब आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मोबाइल स्क्रीन पे ये जो आपको स्केल दिया हुआ है 1 to 12 डिफरेंट पॉइंट्स में, ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होता है. जो से इफेक्टिव होते हैं उनसे ये चीज़ इनको एक क्वेश्चन आंसर दिया जाता है, दे वर आस्क्ड टू फिल इट आउट, ठीक है, जिसमें 12 पॉइंट्स होते हैं, और इस पे इसके मुताबिक इसकी रेटिंग कर ली जाती है फ्रॉम 1 to 12 पॉइंट्स की. अब फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि काजेस करते हैं इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक? दे आर द सो मैनी फैक्टर्स, वी विल डिस्कस फ्यू ऑफ देम, लाइक मैग्नीट्यूड एंड रिक्टर स्केल्स. इसके अलावा इसका मैग्नीट्यूड चेक करने के लिए जो earthquake has a high magnitude, it will result in a high intensity near the epicenter that causes the more damage. ठीक है, कितने एरिया पे जो है उसका वो इफेक्ट फील किया गया है, तो उसकी जो है वो हम रेक्टर स्केल के थ्रू हम इसकी रेटिंग ले लेते हैं, जो कि इसकी मैग्नीट्यूड को मेजर करता है, जो कि जिसकी रेंज होती है 0 to 9.5 तक, और इसके मुताबिक हम जो है वो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी जो है वो मेजर कर लेते हैं. फिर डिस्टेंस फ्रॉम द एपिसेंटर से जिस जगह पे अर्थक्वेक फील किया गया, जहाँ पे डैमेज काज हुआ, उसका डिस्टेंस एपिसेंटर से कितना है. ठीक है, जो एरियाज एपिसेंटर के करीब होते हैं डेफिनेटली दे विल सफ़र मोर डैमेज. ठीक है, दैट्स वेयर द अर्थक्वेक हैज़ द हाईएस्ट इंटेंसिटी, और वो एरियाज होते हैं जहाँ पे इंटेंसिटी अर्थक्वेक की ज़्यादा होती है. And जैसे ऐसे places they are located away from the epicenter, they suffer less damage due to the reduction in its intensity. Then the depth of focus, another important thing, that is the the earthquake that has a shallow focus,
ठीक है, हाई इंटेंसिटी इन द एपिसेंटर एरिया। लाइक अगर हम रिकॉल करते हैं अर्थक्वेक दैट वाज फेस्ड बाय पाकिस्तानी पीपल स्पेशली इन द कश्मीर साइड, ठीक है, कश्मीर इस बेल्ट पे जितने भी सिटीज़ थी वहाँ पे इस्लामाबाद में भी उनके दैट काजेस द ग्रेट डिज़ास्टर्स, ग्रेट डैमेज, ठीक है। दैट वाज ऑन 8 अक्टूबर 2005 में जो है वो हुआ था। इसमें अराउंड अबाउट 83,000 अबव जो है इसमें डेथ्स हुई थी और बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज जो है वो हुआ था। इसकी जो रेक्टर स्केल पे सॉरी इसकी जो मार्कले स्केल पे जो इसकी इंटेंसिटी रिकॉर्ड की गई थी दैट वाज बिटवीन द पॉइंट 10 to 12, ठीक है। दैन जियोलॉजी ऑफ द एरिया, यानी जिस जगह पे अर्थक्वेक फील किया गया है वहाँ की जो मट्टी है वहाँ की जो है वो कैसी है, ठीक है, सॉइल कैसी है। दैट कैन बी ए सैंडी, कैन बी ए सिल्टी सॉइल। वहाँ पे जो है वहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की वो ज़्यादा फील की जाती है। दीज सॉइल्स कैन बिहेव लाइक अ लिक्विड, ठीक है, एंड ड्यू टू द इंटेंस सिस्मिक वेव्स शॉक्स, ठीक है। देन ड्यूरेशन ऑफ द शेकिंग, कितना जो अर्थक्वेक का ड्यूरेशन था वो कितना, मोशंस ऑफ द ऑन द अर्थ कितनी देर तक जो है वो फील की गई हैं। दैट आल्सो डिटरमिन द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक। देन इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक। मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इज़ अर्थक्वेक रेफर्स टू द स्ट्रेंथ ऑफ एन अर्थक्वेक, ठीक है, कि अर्थक्वेक की वजह से कितना ज़्यादा जो है वो डैमेज हुआ। अ सिंगल मैग्नीट्यूड नंबर्स कैन बी असाइंड इन अ सिंगल अर्थक्वेक, ठीक है। और जो इसका मैग्नीट्यूड मेजर किया जाता है दैट इज़ थ्रू द रेक्टर स्केल। और रेक्टर स्केल में जो हमारे पास नंबरिंग आती है दैट रेंजेस फ्रॉम 0 to 9.5। और जो इंस्ट्रूमेंट जो है इसको रिकॉर्डिंग करता है दैट इज़ कॉल्ड द, जो रिकॉर्ड यूज़ किया जाता है दैट इज़ कॉल्ड द सिस्मोग्राफ, ठीक है। सिस्मोग्राफ बेसिकली रिकॉर्ड द मोशन, ठीक है, मोशन दैट बाय ट्रेसिंग वेव शेप लाइंस ऑन द पेपर, ठीक है। एंड if you look here there is a very interesting and informative chart is given here, ठीक है, जो कि आपको डिफरेंट टाइम पीरियड्स में डिफरेंट इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक का अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो आपको एक चार्ट पेपर पे ये प्रेजेंट किया गया है, जो कि आपको डिफरेंट टाइम पीरियड के दौरान आने वाले जो अर्थक्वेक्स हैं उनके बारे में, उनका ड्यूरेशन, उनका नंबर ऑफ जो उनकी वजह से जो डैमेज हुआ, उनकी मार्कले स्केल पे उनकी कितनी इंटेंसिटी थी, रेक्टर स्केल पे उनका क्या मैग्नीट्यूड था, दैट इज़ मेंशन हियर इन दिस चैप्टर, सॉरी हियर इन दिस चार्ट, ठीक है। जैसे आप देखते हो ये हाई इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड की जो ऑफ द वर्ल्ड, लाइक जैसे आप देखते हो क्वेटा में 1935 में अर्थक्वेक आया, दैट काजेस 30,000 to 60,000 डेथ्स, ठीक है। और इसकी इंटेंसिटी जो रिकॉर्ड की गई दैट वाज 10 ऑन द मार्कले इंटेंसिटी स्केल, ठीक है। और जो इसकी रेक्टर स्केल पे रिकॉर्ड की गई दैट वाज 7.7। इन द सेम वे अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो कश्मीर में 8 अक्टूबर 2005 में आने वाला जो अर्थक्वेक था दैट काजेस द डेथ ऑफ 83,000 प्लस, ठीक है। इंटेंसिटी ऑन द मार्कले स्केल वाज between the point of 10 to 12 and on its Richter scale that was 7.6, ठीक है, it was recorded 7.6 on Richter scale, इसका मैग्नीट्यूड रिकॉर्ड किया गया। ओके, आई थिंक नाउ दिस concept is clear to you, ठीक है। दिस इज़ a briefly I have explained it. What you have to do is, students, you have to now you simply do the reading of these topics, ठीक है, of unit number 1 and find out the fill in the blanks and MCQs of question number 2, ठीक है, and then find out the answers of 1, 2 and 3 on your rough notebooks, and inshallah in the next class I will further give you some detail about the rest of the chapter, and then I will also give you the correct answers of these questions, ठीक है। Till then take care of yourself and Allah Hafiz.